Hi Rishikesh and Ravina, can you hear me? Hello? Hello, ma'am. Yeah, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, Ravina, are you there? Yes, ma'am. Okay, great. Rishikesh and Ravina, this is Pranita Rakecha here this side, and I'll be taking care of your bonds and LR section. Okay, I'll just brief you about myself. I'm a software engineer, post that I've done my MBA, and I am into this field, from last almost 7 to 8 years. Just a sec, let the people join in. Few people are still joining. Okay, hi Supreet, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, so Supreet, I was just introducing myself. I am Pranita Rakecha. I'll be taking care of your cons and LR section. As far as my educational background is concerned, I'm a software engineer. Post that I've done my MBA, and I have an experience of almost 7 years in this field of training the students for different competitive exams. Okay. So this was brief about me. I just want to know something about you people. So can we go ahead with your introduction one by one? Yes, ma'am. Yeah. Yes, Supreet. You can just start it. Yes, my name is Supreet Amrutkar. I'm pursuing my BBA. I'm in first year in BYK College. BBA from BYK College. So Yes, Supreet, you are targeting which exam? CAT, ma'am. CAT 22, right? Yes, yes, CAT 22. Okay, great. So great time to start, Supreet. I mean, this is the perfect time when you are starting your preparation. And Yes, dream college, Supreet. of course, I am Ahmedabad. Of course, I am. Yes. So great thing. Now, Supreet, just do one thing. Whichever is your dream college, just put it on the wallpaper of your laptop. Okay. Trust me, 10% work will be done by just putting a picture only. You get the positive vibes when you just try to see the only thing which is there on your mind, your target. Okay. Yes, yes, ma'am. Okay. Okay. I Okay. will Great. definitely do that. Sorry. I will definitely do that. Yes, yes. And trust me, you will tell me after 1.5 years, ma'am, ये वाला trick काम कर गया करके. Okay. Okay, Yogesh, can we have your introduction, please? Hello. Yes, Yogesh, go ahead. Hello, Yogesh. Hello. Yeah, Yogesh, tell me, I can hear you, dear. Yogesh, do one thing. Just disconnect from the meeting and connect again. I guess there is some internet issue at your end. So just leave the meeting and join it again. Hello. Hello. Yes, ma'am. I can hear that. Okay, other people are not replying. Yogesh. Okay, he left the meeting. Ravina, can I have your introduction? Actually, 2-3 of them are having some internet issue. They are trying to join, but they're not able to join. Ravina, are you there? Yes, ma'am. Yeah, Ravina, go ahead with your... Sorry? My name is Ravina Chandrakanta Aire, PYD in KGM College Nifar. Which college, dear? KGM College Nifar. Ravina, I cannot hear you clearly. Can you come again, dear? KGM College Nifar. Okay, okay, Nifar. Okay, okay, great. And you are targeting which exam? CET. Sorry? CET. CET 22, right? Okay. Yeah, great one. And your dream college? Make Nashik College MET City. or Bombay MET? नाही नाशिकच. नाशिकच. का नाशिक नाही सोडायचं? सोडून बघा.
बाहेर नाही टाकणार. चांगला स्कोप आहे बाहेर. Any which ways, your decision, dear. Okay. Yeah. Hi, Darshan. Finally, you joined. There was lots of problem that you were facing while joining the meeting. I hope you can hear me, Darshan. Darshan, can you hear me? Okay, I guess again he's having some issue. Yogesh, try to unmute and speak now. Yogesh? Hello. Yeah. Yes, Yogesh. Yogesh, hello. your introduction, I'm waiting for you, dear. Yogesh, quickly, you're in which year? What course you're pursuing right now? Which exam are you targeting? And which college you're studying in right now? Quickly. Pune University. Pune University क्या है? टारगेट है. मतलब पुंबा जाना है आपको? हाँ. ओके. एंड अभी क्या कर रहे हो योगेश? अभी TYBCom. और कौन से कॉलेज से? नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जळगाव. जलगांव. MJ कॉलेज? नहीं. अच्छा. GT. Okay, fine. Chalo. Now let's quickly start with one of the interesting topic. The topic हम लोग आज लेने वाले हैं. Trust me, it's a very important topic. Please don't forget anything, whatever we are taking today. आप लोगों ने स्कूल में like profit and loss, compound interest, simple interest, percentages, उसके बाद में statistics, ये सब सॉल्व किया. बट सारी चीजों में कहाँ ना कहाँ आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज मिले. Yes or no? If I'm not, if I'm wrong, just correct me. बहुत फॉर्मूलाज के साथ सॉल्व किया आप लोगों ने? हाँ मतलब थे कुछ फॉर्मूले तो. राइट, फॉर्मूलाज थे. और वो फॉर्मूलाज के साथ स्टार्ट कर मीन डील करने में डिफिकल्टी जाती थी थोड़ी ना थोड़ी. और अगर मैं वो सारे फॉर्मूलाज ही उड़ा दूं तो just imagine if we don't have the formula. Trust me, people, throughout this journey of quant, while you're working with me, I'll hardly ask you to learn any formula. Geometry में भी नहीं बोलूंगी कि ये formulas learn करो. In fact, I'll tell you कि formula के without भी आप common sense लगा के questions को कैसे solve कर सकते हो. Topics वही है. Like if you talk about quant, आपके quants में क्या क्या आएगा? Number system आएगा, profit and loss, percentages, compound interest, simple interest, ratios, time, speed, distance, time, work, algebra, basic algebra, 8th and 9th algebra, geometry again 8th 9th का geometry. उसके बाद में permutations combination जो शायद आप लोगों ने नहीं किया होगा अगर आपका 11th में maths नहीं रहा हो तो. Okay. So these are the basic topics that we are going to cover. और ये तो भी आपने अब तक किया स्कूल में या जब भी किया है, आपने steps को importance दिया है, formulas को importance दिया है. But with me, trust me, we are just going to focus on shortcut. For every question, we have to try to find some shortcut. Because CT, CAT, NMAT, SNAP, ZAT, CMAT, whichever exam you're targeting, these exams are all, these people are just testing your speed and your accuracy. And they are not testing कि आपको कितना knowledge है. They are testing कि आपको वो question shortcut way में कितने अच्छे से करते आता है. और वो कैसे टेस्ट कर रहे हैं आपको? जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके एक्यूरेट है तो उनको भी समझ में आ जाता है कि ये बंदे ने ज्यादा शॉर्टकट्स यूज किए तभी जाके इसके इतने एक्यूरेट और इतने क्वेश्चंस बने हैं. Understood? So it's all about speed and accuracy. So now today we will be working with the basic methods of percentages. Now these methods will surely help you to boost your calculation speed because mind when you don't have calculators in any of the exams except for CAT. But CAT में भी calculator is online calculator. वो calculator use करने से better है कि आप calculator ना use करो. इतना slow calculator रहता है वो. Okay. So no calculators. So without calculators, speed को boost करना है, calculations को boost करना है. So we are going to take some tricks. Okay. Darshan, can you hear me? Yes, sir. Okay. Darshan, did you try the tricks that we took in the last class?
What na? We took the tricks in the last class, you Yeah. remember? Yes, You tried yes. them? Yes, na. Yeah, so today we are going to focus on another topic that is called as percentages. Okay, we'll be seeing the tricks which are based on percentages. Okay, now, first of all, what is percent? What do you mean by cent? People, you have to answer. If you keep yourself noted, Century. Century means 100. Per Yes. means क्या? Divide by 100. Something divided by 100. So if I say 35%, इसका मीनिंग क्या होता है? 35 divided by 100. ये समझ में आ रहा है? Yes. If I say 45%, इसका मीनिंग क्या होता है? 45 लिखा, पर का डैश मारा यहाँ पे डिवीजन वाला, और सेंट का हमने क्या लिख दिया? 100. समझ में आ रहा है ये? Okay, so now we'll deal with some basic methods of percentages कि percentages कैसे calculate करना है. Let's say अगर मैं आप लोग को बोलूं calculate 12.5% of 512. I don't want you people to calculate this number. मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये calculate करने को आपको कितना टाइम लगेगा? 3-4 मिनट. 4 मिनट 3-4 मिनट दे सकते हैं क्या दर्शन हम लोग ये इतना टाइम एक क्वेश्चन के लिए? नहीं मैम, No. पेपर में नहीं पॉसिबल ही नहीं, इतना हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, राइट? और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन. समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन का एक वन ऑफ द कैलकुलेशन रहेगा. अब ये कैलकुलेशन को आपको ज्यादा से ज्यादा 10 to 15 सेकेंड्स देने हैं, उसके ऊपर नहीं देना है. सो 10 to 15 सेकेंड्स में ये कैलकुलेशंस अगर करना है, सो वी हैव टू फोकस ऑन वन टेबल. ओके, दैट्स अ वेरी इजी टेबल. मैं आपको बताती हूँ कि वो टेबल कैसे जनरेट होता है और हम लोग उसके साथ कैसे वर्कआउट करेंगे. ना लेट्स से पीपल, अगर मैं बोलती हूँ 50%, इसका इक्विवेलेंट मुझे आप फ्रैक्शन बता सकते हो? 50% कैसे लिखते हैं हम लोग? 50/100. 100. कैन आई सिंपली राइट दिस इज हाफ? अगर मैंने बोला कि मैंने 50% पिज्जा खा लिया है, उसका मतलब मैंने कितना पिज्जा खाया है? 1.5 पिज्जा खा लिया. हाफ पिज्जा मैंने खा लिया है, राइट? हाँ, So 50% is equivalent to what? 1/2. ये समझ में आ रहा है? Now, अगर 50% 1/2 है, so 25% कितना होता है? 1/4. 1/4. हमने क्या किया यहाँ पे? ये 50 को 2 से डिवाइड किया, राइट? तो आपको 25 मिला. सिमिलरली 1/2 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया, कैसे डिवाइड करते? 1/2 डिवाइडेड बाय 2 कैसे लिखते हैं? ये डिवीजन का साइन अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन का साइन Multiply करते हैं 1/2. और उसके रेसिप्रोकल. व्हाट इज दिस नंबर इक्विवेलेंट टू 1/4? समझ में आ रहा है डिवीजन कैसे हुआ ये और मुझे 1/4 कैसे आया, राइट? ओके, नाउ लेट्स से अगर अब मैं लिखती हूँ 12.5%, अब बता सकते हो 12.5% का इक्विवेलेंट रेशियो क्या है? 25 से 12.5 कम मिलता है मुझे. सुप्रीत, when do I get 12.5 from 25? Ravina, Yogesh, even you people can answer. अच्छा, do one thing, do 25 divided by 2 और मुझे बताओ कितना मिलता है? 12.5. 12.5. 12.5. So 1/4 को अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे? 1/8, राइट? अभी इसको सॉल्व करते हैं. 12.5% of 512. Can I write this is nothing but 1/8 of 512? अभी बताओ कितना टाइम लगेगा? अब पॉसिबल है ना 10 सेकेंड्स में ये सॉल्व करना? हाँ. समझ में आ रहा है? ये हमने, ये जो ट्रिक हम लोग सीख रहे हैं, ये जो टेबल हम बनाना सीख रहे हैं, this will help you to boost your speed in your calculation. Okay, understood this everyone? Yes ma'am. Okay, so now let's say अगर मुझे अभी चाहिए 6.25%, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ क्या होगा? 12.5 से 6.25 कैसे मिलेगा? Divided by 2. तो 1/8 को अगर 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा?
1/16. 1/16 और अभी ट्रिक समझ में आ गया आप लोग को, राइट? यस, ओके। तो ये हुआ वन सेट ऑफ नंबर्स। अभी दूसरे सेट के तरफ चलते हैं। लेट मी जस्ट इरेज द पार्ट जो अभी नेसेसरी नहीं है हमारे लिए। जस्ट okay. Now next is 33.33%. 33.33% मतलब क्या होता है? इसका फ्रैक्शन निकालना हम लोग को। So it is 1/3. Yes, या 1/3 into 100 करोगे ना, मतलब 100 का 1/3 निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? 33.33 चलते जाएगा, which is nothing but 33.33%. समझ में आया? लेट्स से आपको 3 मार्क्स का पेपर था, उसमें से आपको 1 मार्क मिला, मतलब आपको 1/3 मार्क मिला है। 1/3 मार्क कितना परसेंट होता है? 33.33%. समझ में आ रहा है ये कोरिलेशन? Am I being very fast? Should I slow down my speed? No one is replying. Yogesh? Yogesh, are you there? आ रहा है समझ में। Okay. रवीना, आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay, great. So अगर 33.33 is 1/3, so 1/6 अगर मुझे करना है, ये 1/3 से 1/6 कैसे लाया मैंने? अगर 1/3 को मैंने 2 से डिवाइड किया, इसका मीनिंग क्या होता है? 1/3 into 1/2 which is 1/6. मतलब मैंने 2 से डिवाइड किया, अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? सो अगर 33.33 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? 16.66%. समझ में आया ये? ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर मुझे 1/12 चाहिए, कैसे आया ये 1/12? 2 से डिवाइड किया 1 पर Divided by 2. 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा मुझे? 8.99. 8.33%. Yes. हाँ, And what is your job after the class today? आपको ये सारी चीजें लर्न करनी है। जैसे मैंने बोला 33.33, आपके दिमाग में क्या नंबर आना चाहिए? 1/3. अगर मैंने बोला 8.33, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 1/12. राइट? मैं कुछ कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको ये टेबल को कैसे लर्न करना है। ओके, सो जस्ट गो ऑन टेकिंग दीज नंबर्स डाउन। Okay, now let's go on to the next one. The next one is ये अभी अगर आपने देखा होगा 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ये 1/3, 6, 12. Now let's say अगर मुझे चाहिए 20%, कोई बता सकता है मुझे 20% मतलब क्या फ्रैक्शन होएगा? Can anyone tell this? 1/5. 1/5. Great. 10%? 1/10. 1/10. ओके, नाउ लेट्स से अगर मैंने लिखा 1/20, ये कितना परसेंट होएगा? 5%. राइट? ऑलवेज रिमेम्बर, अगर मैंने बोल दिया ना आपको 3% बताओ कितना है, तो 3% क्या रहेगा? 33, 1/33.33. ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। लाइक अगर मैंने बोल दिया 1/16.66 कितना है, तो आप डायरेक्टली लिखोगे 6%. समझ में आ रहा है ये? या आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? Let's move on to the next number now. Next number थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 1/7. इसका वैल्यू होता है 7 का डबल कितना होता है? 14. और 14 का डबल 28. दिस इज द ट्रिक टू रिमेम्बर। ये ट्रिक समझा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। बहुत से क्वेश्चंस में 14.28 आपको दिखेगा ही दिखेगा, और अगर आपने ये अच्छे से किया ना, ट्रस्ट मी, आपका परसेंटेज टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं फॉर्मूलाज नहीं यूज करने वाली हूँ, बट फिर उसके लिए आपको ये टेबल आना जरूरी है। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो पता नहीं एक नाइटमेयर था हमारे लिए स्कूल में। ओके, वही टॉपिक आपको इजी लगेगा इफ यू नो दिस परसेंटेज का टेबल। ओके, द नेक्स्ट वन 1/14 कितना आएगा? 1/14 अगर 1/7 14.28 है, तो 1/14 कितना आएगा? 28.
नहीं, डिवाइड करो ना बेटा इसको। 1/7 से 1/14 कैसे आया? डिवाइड किया 2 से, तो इसको भी अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 7.1. 7.14। समझ में आया अभी? या Okay. okay. Now the next number in the series, see हमने 1/2 देखा, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 भी हो गया, 1/9 बचा है, राइट? 10 हो गया, 11 बचा है। ये जो 9, 11 है ना, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स है। अभी इसमें इंटरेस्टिंग है क्या? 9, 11 कुछ तो हुआ था, ये डेट किसी को याद है क्या हुआ था? 9, 11 बहुत एक डिजास्टर हुआ था बहुत बड़ा। Can anyone tell me what happened on 9/11? That is 9th of November. एक डेट था, बहुत फेमस डेट है ये। अच्छा, ट्विन टावर अटैक कितने लोगों को याद है? You people remember ट्विन टावर अटैक हुआ था, एयर क्रैश, टेररिस्ट अटैक था वो? नहीं? Right. ओके फाइन, चलो नहीं याद है तो एक याद रख लो, एक इजी वे ऑफ रिमेम्बर। 9, 9 और 11 एक दूसरे के भाई बहन है, ऐसा समझ के चलना। ये क्यों है चेक करते हैं। अब मैं ये जब ट्रिक लिखूंगी ना, आप लोग ही मुझे एक्सप्लेन करोगे कि क्या हो रहा है। 1/9 is equal to 11.11. 1/11 is equal to 9.09. उसके बाद में 2/9 is equal to 22.22. 2/11 is equal to 18.18. मैं लिखते जा रही हूँ, आप लोग को जब जैसे ही ट्रिक समझ में आता है लेट मी नो। 3/9 is 33.33. यस, क्या मिला आपको यहाँ पे? डबल हो रहा, क्या मिला बताओ? परसेंटेज वाइज डबल हो रहा। डबल तो नहीं है, इट्स नॉट डबल। No. Multiplying by 2. No. चेक चेक चेक, नहीं, मैंने लिख into दिया है, 11. आपको लॉजिक निकालना है अभी। जो 1/9 था, जो 11 से ऐड हो रहा, 11 और 9.09. कैन आई से यहाँ पे 11 का टेबल चल रहा है? 11 का टेबल क्या होता है? 11, 22, 33, 44, yes or no? Right? So 1/9 is 11.11. अभी 2/9 है, see 1/9, I'll just write it over here. अगर मैं लिखती हूँ 1/9 is equal to 11.11%, okay? अभी यहाँ पे मुझे फाइंड करना है 2/9, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिलेगा? 22.22, राइट? अगर मुझे 3/9 चाहिए तो हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिला हमको 3/9 और यहाँ पे 33.33, सिमिलरली 44। सो अगर डिनोमिनेटर में 9 है तो आपको कौन सा टेबल चलाना है? 11 का टेबल। Now let's see if I give you a question. 44.44% of let's say आपको निकालना है 72. इजी है ये क्वेश्चन अभी, when we know the fraction. What is 44.44? Nikita, 4/9. Gaurav, you have just joined, but still you 4/9. can, yeah. 4/9, so 44.44% की जगह पे 4/9 into 72. So 9 ones are 9, 8s are. Easily we got it 32. And just imagine अगर आप आपके मेथड से जाते हो कैंसिलेशन वाले, कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने को? जो आपने बोला था 2-3 मिनट आराम से लग जाएगा उतना, राइट? Okay. Similarly, if you check this 1/11 का series, which table can you observe over here? 9. It is 9 का table है, right? So let's say अगर मैं आपको अभी बोलती हूँ, I'll ask you to find out 7/9 कितना रहेगा? Quickly tell me. 7/9. 63. 7/9 डिनोमिनेटर में 9 है, 9 है, हाँ। 11 का टेबल।
मतलब यहाँ पे जो 77. 77. परफेक्ट। और अगर मैंने बोल दिया 7/11 तो 9 7 का कितना होता है? 63. 63. समझ में आया ये लॉजिक? Yes. Okay. I want everyone to take the screenshot or else I'll give you a minute. Just observe all the numbers. आपके book में लिखो. Let me know once done. Then only I'll move to another pattern of numbers. Because these are really important numbers. अगर ये नहीं किया तो speed कभी भी नहीं बढ़ेगा. Okay. And they are really very easy to understand and learn also. Okay. Just go ahead. Write it down. क्या क्या लिखना है, जो लिखना है मैं रखती हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, बाकी मैं इरेज कर रही हूँ। और इस स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी, आपको जो करना आप कर सकते हो, बट लेट मी नो आपका होने के बाद में। या प्लीज राइट डाउन दिस नंबर्स। And please let me know once done. Done. डन? Yes, ma'am. Yes. ओके चलो, अगर नहीं हुआ होगा तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली, सो दैट ये मैं ऐसे ही रखूंगी, आपको लगे तो मैं बाद में टाइम देती हूँ और लिखना है तो आपको। टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली। ओके, नाउ वी नो दैट, लेट्स से हम लोगों ने अभी लिखा था 1/3, हमने कितना लिखा था? 33.3%। बट अगर मुझे लिखना है 10/3, अभी मैंने क्या किया, ये वाले फ्रैक्शन में क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड किया मैंने टू गेट 10/3? 0. मतलब sorry, मल्टीप्लाई बाय 10 किया ना यहाँ पे Into मैंने। 10. हाँ, multiply Yeah. by 10 तो है। यहाँ पे 10. भी मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो ये पॉइंट शिफ्ट होगा। Yes. यस, कहाँ पे शिफ्ट होगा? टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट? Left. राइट, ऐसा होएगा ना? हाँ, समझ में आ रहा है ये? या और एल्स अगर मैंने लेट्स से अगर 10/3 लिखा है, मैंने 1/30 कर दिया, ये 1/3 से 1/30 कब मिलता है मुझे? 1/10 से multiply. 1/10 से मैंने मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको अगर 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट होगा? अभी लेफ्ट या राइट? right. अभी लेफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट होता है ना? हाँ, sorry, हाँ। यस, सो दिस विल बी, तो समझ में आ रहा है, एक ही नंबर के साथ में सिर्फ जीरोस को एडजस्ट करना है तो आपको पॉइंट्स को एडजस्ट करना होगा। ओके, नाउ लेट्स से इफ आई राइट 1/20, दिस वाज 5%, राइट? नाउ लेट्स से इफ आई राइट समथिंग लाइक 6/20, कितना परसेंट होगा? कैसे निकालेंगे हम लोग 6/20? 1/20 अगर 5 है तो यहाँ से 1/20 में ऐसा क्या किया कि मुझे 6/20 मिला? Multiply by 6. मतलब इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 30। Are you people getting this what I am doing? Yes. Anyone any doubt? Please stop me here itself. This is really very important shortcut trick which is going to help you in 4 to 5 topics.
Okay, now let's see if I ask you 2 by 3 is what percent? कौन सा fraction use करोगे सबसे पहले? 1/3 1 by 3. 1 by 3 में क्या करोगे? into 2 Into 2. मतलब 33.33 into 2 कितना हो जाएगा ये? 66.66. 66.66 Right? Let's say अगर मैंने लिख दिया 3/4. 3/4 का वैल्यू चाहिए. But first of all, what is 1/4? 25%. So 3/4 कितना हो जाएगा? 75%. समझा सबको ये? yes Yes. Anyone, any doubt with these numbers? Can we solve few questions based on this table? Let's solve it. Let me quickly write down the numbers for you first. 14.28% of 49. You people can start solving this. I'm just writing down the questions for you. Next is 27.27% of 555. Okay, this is 5,555. Okay, next question number 3. 8.33% of 108. Question number 4. 55.55% of 63 plus 63.63% of 55. Question number 5. Find out the value of 6.25% of 48. So these are the 5 questions. Solve it. Solve it using the table and check कितना time लगता है आपको. ये 5 questions के लिए आपको 1.5 minute से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. Solve it. I'm waiting for all of you for your answer. If you cannot unmute yourself, put your answers on chat. But at least try to answer these questions. Gaurav, are you there? Can you hear me now? मैम क्वेश्चन 4 का आंसर बताओगे? नहीं, मुझे 5 आंसर्स एक साथ में, पहले 5 सॉल्व करो. Gaurav, able to hear me now? Gaurav, am I audible? Hello, Gaurav.
Done, people, or with all 5 questions? Hello? Hello? Can you people hear me? Yes. Done with it? Let's check them one by one. 14.28%, मतलब क्या होता है 14.28% का फ्रैक्शन? 1/7. 1/7 of 49 कितना आएगा? 7. 7, right? Perfect. 27.27, what is the fraction? 3/11. 59. 3/11 of what? 5, 5, 5, 5. तो क्या होता है ये 11 ones are 11, 5, 0, 5 are, and then आपको सिर्फ multiply करना है, तो 3 5s are 15, 1 carry again. आया सबका आंसर ये? नेक्स्ट वन 8.33% क्या होता है? 1/12. 1/12 of 108. 12, how many are 108? 9. 9s, and that's the answer. Next 55.55, कौन सा फ्रैक्शन है ये 55.55? 5/9. This is nothing but 5/9, right? Of 63 plus 63.63 किसका है ये? 7/11, right? Of 55. Further solving this, 9 ones are 9 sevens are, तो यहाँ पे क्या बचेगा 35, और यहाँ पे कितना आएगा 35. तो टोटल आंसर कितना आ गया आपका 70%. ये समझा सबको? Did you people understand this question? Nikita, can you please unmute, dear? Nikita, put it in chat, Nikita, if your mic is not working. Just let me know your presence. Nikita. Okay, let's go ahead. 6.25%. कितना फ्रैक्शन होता है इसका? We did this. 6.25 कितना होता है? 1/16. 1/16. Supreet, are you there? 16 times 3 is nothing but 48. तो आपका आंसर यहाँ पे 3 आएगा. समझ में आए ये सारे क्वेश्चन सबको? Can I switch to another method, or you want more practice on these questions? Yes, योगेश, इसका प्रैक्टिस चाहिए या दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चले? मैम थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, मतलब नंबर का कंफ्यूजन हो जाता है. आपने योगेश वो टेबल लिखा है पहले पूरे जो मैंने दिया था? योगेश ने मैम सुप्रीत. ओके सुप्रीत, सुप्रीत आपने वो टेबल लिखा पूरा जो मैंने आपको बोला था लिखने के लिए? हेलो सुप्रीत. Yes ma'am, I have screenshot. Okay, fine. I'll move to another this thing. Take the screenshot of this quickly. I'll give you a few more questions. Everyone take the screenshot of this. Chalo, let's go on to the next set of questions now. Question number 6. Find 4% of 80. Question number 7. 16.67% of 36. Question number 8. 8.33% of 72. Question number 9. 66.66% of 63. Question number 10. 10% of 63257. So
Solve these 5 questions now. Done, people? Let me know आपका होने के बाद मुझे बताओ आपका हुआ है या नहीं. I'll wait for you people. Take your time, solve it. आज थोड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट टाइम आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. Done? Hello, am I audible? Supreet, done? Yogesh? Yes. Okay. 4% of 80. 4% मतलब क्या फ्रैक्शन आता है? 1/20. 1/2. 1/20. Okay. हाँ sorry 1/20. Okay. हाँ. Of 80. मतलब कितना 80. आएगा ये? 4. नहीं. I'm so 1 sorry. by 1/25. 1/25. So ये कितना नंबर आएगा? 80 divided by 25. 25 is a 75. 3.2. बचा yes 3.2 is the answer. Next 16.67 क्या फ्रैक्शन मिलता है? 1/6 Yes. बराबर ना? Yes ma'am. 1.8. 6 which is equal to 6. 8.33 कितना होता है? 1/12. 1.70 into 72 into कितना आएगा ये? 6. 66.66 6/9. 6/9 9. 63. 40. 42. Perfect. Yeah. Next 10% मतलब 1/10 1/10 of of 63. 63. Okay. डेसिमल पॉइंट कहाँ पे डालेंगे हम लोग? 0.7. Yes. Yeah. अभी आया? अभी कंफ्यूजन नहीं है ना सुप्रीत? No ma'am. Can we move on to the next part? Okay ma'am. Okay. अभी थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Now let's say अभी कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमको इक्विवेलेंट परसेंटेज पता नहीं होता है, बट हमको सॉल्व तो करना है.
Okay, let's see if I want to calculate something like 54% of, let's say number at 208. इसका 54% निकालना. Now can I write 54% is nothing but 50 plus 4 लिख सकते हैं ना? 54 को मैं 50 plus 4 कर सकती हूँ, correct? Now इसको अगर ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 50% of 108 plus 4% of 208. समझ में आ रहा है ये कैसे किया मैंने? 54 को ब्रेक कर दिया 50 and 4. अभी 50% 108 निकालना इजी है, हाफ निकालना है डायरेक्ट. इसका हाफ कितना आएगा? If you try to make the half of this number, इसका हाफ कितना आएगा? 54 and 4% मतलब क्या होता है? 1/25 into 208, right? So 25 ones are 25, 8s are 200, बचा 8. आपने 0 लगाया पॉइंट डाल के तो 80, 5s are 75 और फिर 2s are. So आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 54 plus 8. What is 54 plus 8? 62.52. See, इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी इजी बन जाता है अगर आप ये मेथड फॉलो करो तो. Let's take few more examples. Let's say अभी मुझे अगर कैलकुलेट करना है 96% of 500. कैसे कैलकुलेट करेंगे 96% of 500? Can you people tell me? 100 minus 4. 100 minus 4. Perfect. What is 100% of a number? What do we mean by 100% of that number? Yes. If I ask you what is 100% of 500, 500 का 100% कितना होता है? क्या आएगा आंसर? 500. Same number. Fine. तो हमने क्या करना है? 500 में से 4%. 4% मतलब 1/25. 1/25 of 500 कितना हो जाएगा ये नंबर? 20. That means आपका फाइनल आंसर कितना आया? 480. समझ में आ रहा है ये? The next one. Let's say अगर अब मुझे कैलकुलेट करना है 25.25% of 60. कैसे करोगे कैलकुलेट? I want you people to unmute and tell me कि इसका आंसर क्या आएगा या क्या लॉजिक है? 20 plus 5.25. 5.25 तो आता ही नहीं है दर्शन हमको अरे निकालना. 20 plus 5.1 plus 0.25. ऐसा कुछ कर हाँ सकते ऐसा. Yes. हैं? ये ज्यादा इजी है ना दर्शन? ओके 25% निकालना आता है हम लोग को दर्शन? Yes. हमको पता है 25% कितना होता है? 1/4. 1/4 of 16 बराबर. अगर 25% 1/4 है तो 0.25%. ये 25 से 0.25 कैसे हुआ? हमने डिवाइड किया ना 100 से. यस. सो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा लाइक 0.25 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या रहेगा? 1/400 into 16, राइट? सो दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 16/4 which is 4. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4/100 मतलब 0.04. सो फाइनल आंसर विल बी 4.04. ये समझा सबको कैलकुलेशन? Can I give you questions based on this type of calculations? Will you try them? What happened, people? Please reply. Supreet, are you there? Yes, ma'am. Yeah, please reply. Now I'm asking you something. Okay. So did you understand this? Yes. Yes. Okay. Yogesh, आपको समझा? Yes. Great. Now let's go further. Let's solve few questions based on this. I'll give you the questions. Question number 1. Find 75.25% of let's say number is 48. Next question number 2. Find 66.66% of 99. Question number 3. Find
12.5% of 48. Question number 4, find 37.5% of 48. Question number 5, find 87.5% of 48. I give you 5 minutes for these 5 questions because थोड़े numbers tricky है. मैं यहीं पे हूँ. I'm just muting myself कि disturbance आपको बिल्कुल भी ना हो. Solve it. If you're done, let me know. Unmute yourself and tell me. Otherwise, put it on chat. आपका मर्जी. Okay? Solve it. Gaurav, now can you hear me? Gaurav? Gaurav, try using some another device if you cannot hear me. Priyanka, can you hear me? If yes, put it in chat. Actually, we started long back, Priyanka. Okay, done, people. Yogesh, Supreet, Darshan, done. योगेश हो गया बेटा आपका? Yes. Okay. What about you, Darshan? Not over. Sorry? नहीं हुआ. Okay.
मुझे बताओ आपका होने पे। ओके सुप्रीत, ओके लेट्स चेक इट वन बाय वन नाउ। सबसे पहले 75.25% ऑफ 48। नाउ इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं हम लोग? 75 प्लस 0.25% ऑफ 48, which can be further written as 75% of 48 plus 0.25% of 48। 75% मतलब कितना होता है? लिखा था हम लोगों ने टेबल में। How much is this fraction? ये फ्रैक्शन कितना है? 75% कितना फ्रैक्शन होएगा? 3/4 of 48 प्लस 0.25। 0.25 मतलब क्या होता है? 25% मतलब 1/4। सो 0.25 कितना रहेगा? People, are you there? 25% is equal to 1/4। So 0.25 मतलब हमने क्या किया? ये नंबर को 100 से डिवाइड किया, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 1/400 या प्लस 1/400 ऑफ 48। अभी देखते हैं क्या आएगा। 3/4 ऑफ 48 मतलब क्या? 4 1s 4 12s 12 3s 36 प्लस 4 1s 4 12s 12/100 मतलब 0.12। सो फाइनल आंसर आएगा 36.12। समझाइए सबको अभी। Any doubt with this question? If no, let's go on to next one. 66.66 डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख के दिया आप लोग को। 6/9 6/9 और can we say 2/3? Yeah, of 99। ये कितना हो जाएगा नंबर when you try to solve it? कितना आएगा ये नंबर? 66, करेक्ट। नेक्स्ट 12.5% मतलब कितना होता है? 1/8 1/8 of 48 कितना आएगा ये नंबर? 6, करेक्ट। ये 37.5 को कैसे वर्कआउट कर सकते हैं? एनीवन विद द ट्रिक? टेल मी वन थिंग, 50 में से अगर 12.5 गया तो कितना बचता है? 37.5 आया? सो नाउ कैन आई से मुझे क्या करना है? 50% ऑफ 48 उसमें से 12.5% ऑफ 48 करना है। बेसिकली 50% ऑफ 48 होता है 24 1/2, राइट? माइनस 12.5 का वैल्यू क्या होता है? 1/8। 1/8 ऑफ 48 अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया? 6। सो 24 में से अगर 6 चला गया तो कितना बचा? आंसर आपका फाइनल आंसर इज 18। अगर ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ट्रिक बताओ। 87.5 कैसे फाइंड करोगे?
100 minus 12.5. 100 minus 12.5. 100 minus 12.5 और else ये नंबर देखो 48 दोनों पता है हमको Same है, yeah. Can we write it 50% plus 37.5%? Yes or no? Which is as good as 24 plus यहाँ पे हमने already 18 निकाला है, ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद नंबर क्या मिलेगा हमको 42. समझाइए सबको. Everyone understood this? Yeah. Can we move on to the next set of numbers? Or do you want more practice on these type of questions? Do you want more practice on this, or can we move on to the another set of questions? Another set of questions. Okay, great. Now percentages में ना एक चीज हमने किया जहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड की, बट कभी कभी वो लोग बोलते हैं परसेंटेज कैलकुलेट करो. मतलब लेट्स से अगर आपको मिला है 623 मार्क्स आउट ऑफ 752 और आपको पूछा है कि कितना परसेंट है ये कैलकुलेट करना है ना. ये जो हम लोग कर रहे हैं, सी कभी कभी कैंसिलेशंस होते हैं, कभी कभी कैंसिलेशंस नहीं भी होते, राइट. ये नॉर्मल मेथड जो आप लोग यूज करते हो उसमें आप वैसे करते हो, बट मेरा मेथड वैसा नहीं है. मेरा मेथड स्टार्टिंग में थोड़ा समझने में डिफिकल्ट रहेगा, बट एक बार अगर आपको मेथड आ गया, ट्रस्ट मी, कैलकुलेटर्स की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी. ओके, नहीं समझ में आता है, टेल मी, I'll explain it to you again and again with many examples. जितने examples possible, I'll take it till the time you don't understand. But try to understand this method. Don't skip this method at any cost. Okay, people? Now, always remember, जो भी denominator में होता है वो होता है आपका base number. Okay? आपको क्या चेक करना है? 623 752 का कितना परसेंट है? Okay? लेट्स से अगर मैंने आपको बोला पिज्जा था, 8 स्लाइसेस थे, 8 स्लाइसेस में से मैंने 2 स्लाइसेस खा लिया, दैट मींस मैंने 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8 फाइंड किया. बेसिकली 2 स्लाइसेस 8% का कितना, 8 का कितना परसेंट होता है ये फाइंड किया. सेम वे में 623 इज व्हाट परसेंट ऑफ 752. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट. नाउ हाउ टू फाइंड इट आउट? वर्क विद द बेस. सबसे पहले बेस का 10% निकालो. What is 10% of 752? Quickly tell me. 75.2. 75.2. आपने करना क्या है? सिर्फ डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट 10% 75.2 है. अभी 10 में से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं 623 के आसपास में पहुंच सकती हूँ? मतलब 10% 75.2 है, राइट? इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हम लोग 623 के आसपास में पहुंच सकते हैं? 7 की टेबल में 62 के आसपास कौन सा नंबर आता है? ये 7 और यहाँ का 62, ऐसा कौन सा नंबर आता है? 56. मतलब आप बोल रहे हो मुझे मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं ये नंबर, राइट? अगर मैंने ये 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 80% ऑफ 752. देखते हैं 80% कितना आता है. 80% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 75.2 into 8 मल्टीप्लाई करते हैं. 8 2 जा 16, 1 41 4 601.6. हम लोग थोड़े पास में पहुंचे 623 के. Yes. यस, मतलब कैन वी से कि मेरा आंसर 80% से ज्यादा है. कितना है वो नहीं पता, बट ये डेफिनेट है कि 80% से थोड़ा ऊपर है. Yeah. या ओके, अभी 80% से थोड़ा ऊपर, डायरेक्ट 90% तक जाएगा क्या ये नंबर? नहीं. नहीं. दैट मींस अभी मुझे 1% के साथ काम करना है. व्हाट विल बी 1% ऑफ 752? 7.5. 7.5. वो 8 को उड़ा दो, ये सॉरी 2 को उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी हम लोग कितना दूर है? 601 एंड 623, कितना डिफरेंस है दोनों में? 22. 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं 22 के आसपास में पहुंच जाऊंगी? 3. 3. Yeah. मतलब मुझे 3% ऑफ 752 कैलकुलेट करना है. व्हाट इज 3%? 15 1 215. मतलब हमको कितना चाहिए था? कितना डिफरेंस आया था? 22 का डिफरेंस आया था. यस और नो? सो कैन वी से दैट कि अगर मैंने 80 और 3 को ऐड कर दिया, मतलब 601 और इसको ऐड कर दिया, कितना आता है? जस्ट ऐड देम.
6 + 5 1, 1 कैरी, 3 यहाँ पे आता है, उसके बाद में 2 और ये 6 आया एग्जैक्ट 83% हमारा आंसर। Are you people getting this? आप कैलकुलेटर्स पे प्लीज चेक करो। 623 डिवाइडेड बाय 752 into 100 और मुझे बताओ कितना आता है। क्रॉस चेक करने के लिए यू कैन यूज कैलकुलेटर्स। डू इट। आई एम अगेन रिपीटिंग, मेथड थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, बट इसके हम लोग काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बहुत स्मूथ हो जाएगा मेथड, और एक बार स्मूथ हो गया तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन के लिए इतना लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। पीपल क्रॉस चेक किया, कितना आया? राइट है। डिड यू पीपल अंडरस्टैंड हाउ डिड आई डू? सबसे पहले 10% फाइंड करो। 10% जब फाइंड करते हो ना तो आपको समझ में आता है कि आपका आंसर 80s में है, 70s में है, 40s में है, 60s में है, 90s में है। एक बार वो समझ में आ गया, फिर कितना और आगे जाना है, तो व्हाट यू विल डू इन दैट, फिर 1% के साथ काम करो। ओके, फिर 1% के साथ काम करो। बिकॉज 1% के साथ क्यों काम किया? 80 में कुछ तो ऐड करना था, बट वो या तो 1 2 3 4 5 यही नंबर ऐड करना था, 10 तो ऐड नहीं करना था, राइट? इसलिए मैंने 1% के साथ काम किया। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस so that I can move to another page. Done? Okay, let's check another question. 514 is what percent of 623? ये हमको फाइंड करना है। What will be the base over here? 623. Okay, let's find 10% of 623. कितना होता है 10%? 62.3. अभी 62 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं ये 51 के आसपास पहुंच सकती हूँ? 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें? 6 का टेबल, ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें सो दैट 51 के आसपास में पहुंचेंगे? 8. 8, correct. So if you multiply this number by 8, let's check what do you get. 24, 2, 18, 1, 498.4. So can we say ये हमको जो नंबर मिला ये क्या मिला है? 80% of 623. मतलब हमारा आंसर 80 से थोड़ा ज्यादा है। Yes or no? कितने का डिफरेंस आ रहा है 514 and 498 में? कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है? 16? 514 minus 498, 16 आ रहा है क्या? Yes. Yes. अभी 1% के साथ काम करना पड़ेगा। 1% आपका कितना होता है 623 का? 6.23, मतलब ऑलमोस्ट 6। 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हम लोग 16 मिल जाएगा? बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस 16 है। क्या मल्टीप्लाई करें 6 में कि 16 के पास में पहुंचेंगे? 2 जा करोगे तो कितना हो जाएगा? जस्ट मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 2, यू विल गेट 12.46, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 13। यस और नो? दैट मीन्स कैन वी से ओवर हियर ये हमारा जो आंसर है वो फाइनल आंसर कितना आएगा? ये 82 पॉइंट समथिंग समथिंग, और ऑप्शंस तो रहते ही है ना आपके पास टिक करने को। तो अप्रोक्सीमेटली वी फाउंड आउट 82% से थोड़ा ज्यादा ये नंबर। अंडरस्टूड दिस? You can cross check the answer on calculator and tell me whether it is correct. Your answer should be 82 point something something. Let me know once you have cross checked it. 82.5. 82.5, that's the answer. मैंने आपको बोला था ना 82 point something something आएगा। चले आगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुप्रीत समझ में आ रहा है? गौरव समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैट में डालो गौरव। सुप्रीत आपको समझ में आया? हाँ मैम। Okay, let's take one more. Let's say I want to calculate 146 is what percent of 514? Tell me, क्या करें सबसे पहले? What is the base?
Okay, so 10% of 514 कितना आएगा? 51.4. ओके, अभी 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें सो दैट हम लोग ये 146 के आसपास पहुंच सकते हैं? 2 करोगे तो 150 के आगे चले जाओगे, राइट? सो हम लोगों ने पहले क्या निकालना है? 20%. 20% ऑफ 514 कितना आएगा? 20% इसका डबल, विच इज 10.8, मतलब ऑलमोस्ट 103 लिख दूं इसको मैं. अभी कितना डिफरेंस आ रहा है 146 और 103 में? 43 का डिफरेंस है. यस, ओके. नाउ लेट्स फाइंड 1%. 1% ऑफ 514 कितना आता है? 5.14. और हमको कितना चाहिए? डिफरेंस कितना आया था हमारा? 43 का आया था. 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 43 के आसपास पहुंचेंगे? 8. दैट मीन्स हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे? 8%. 8% of 514 which will be 505.14 into 8, मतलब 32, 3, 11, 1, that is 1. correct? yes or no? आए हम लोग 43 के काफी क्लोज आ गए. 41. so can we say हमारा जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा? 28%, 28 point something percent. take it. check it and let me know whether it is correct. Yes, 28. Did you people understand how to solve this? Will you solve one example based on this type? Will you people try this one question? Okay, give it a try. 326 is what percent of 650? Give it a try. Solve करो इसको. हेलो गौरव. हाँ अभी आई. मतलब गौरव आप इतने देर से मीटिंग में थे, आपको कुछ भी सुनाई नहीं दिया? मैं क्या बोल रही थी? कुछ भी नहीं. अरे बाप रे, आपने ऐसे टाइम सोहेल सर को कॉल करना चाहिए था. क्या होता है ना, जूम में ना यू हैव टू कोई सेटिंग्स होती है वो सेट करनी होती है. नहीं मैंने कॉल किया पर रिसीव किया नहीं किसने. ओके, सोहेल सर को किया था आपने कॉल? नहीं मैं लैंडलाइन का नंबर था, कल में आया था उससे फोन. लैंडलाइन शायद नहीं रिसीव हुआ रहेगा. आपको सोहेल सर को डायरेक्टली कॉल करना है. और मैं आपको कब से टेक्स्ट कर रही हूँ बट आपको मैसेजेस भी नहीं जा रहे. हाँ मैसेज भी आया नहीं आपकी, सिर्फ वो एक बार आया था. रिस्टार्ट किया, रिस्टार्ट
रीस्टार्ट का मैसेज आया तो सेफ है। और एनी विच मींस अभी क्या करो ना, अभी पूरा सेशन ऑलमोस्ट आप थे ही नहीं, तो थोड़ा अभी कुछ भी समझ में थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, बट जितना समझता है ट्राई करो, नहीं आता है तो नेक्स्ट सेशन अगेन यू कैन टेक वन डेमो, या हाँ हाँ and try to log in early so that at least कोई problem आता है तो we are there for you know with this technical thing for you. नहीं वो मैं एक्चुअली पेपर चालू था मेरा तभी। Okay, fine, Gaurav. So yeah, if you want you can stay back, जितना समझ रहा है उतना समझो, because almost like theory हमने ले लिया, अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। अगर आपने देखा होगा, एटलीस्ट आपको दिख रहा था सब कुछ, राइट? हाँ दिख सब रहा था, पर सुना ही नहीं कुछ दिया। ओके, क्या प्रॉब्लम आया था, क्या सेटिंग में चेंजेस किया सो दैट अभी ऑडिबल हो गया? क्या पता नहीं, मैंने सिर्फ वो अनम्यूट किया मेरे ख्याल से, मेरा माइक। हाँ तो वही तो इम्पोर्टेंट था डियर। अच्छा अच्छा Okay, never mind, Gaurav. You can take one more demo session after this, okay? या Okay. Darshan, are you done? Yes, ma'am. Okay, let's take Gaurav. आप भी check करो. So base over here is 615. So let's find 10% of 615 first. What will be 10%? 61.5. 61.5. Okay. अभी 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें so that हम लोग इसके पास में पहुंचे? 5. तो 5 करना है मतलब 50% कर रहे हैं हम लोग, so directly इसका 50% भी लिख सकते हैं ना, rather than multiplying. Yes. इसका 50% कितना आएगा? Half of 615, which is 307. 7.5. बस 307 पॉइंट, हाँ आगे का छोड़ दो, because पॉइंट कितना वापस 5 भी आने वाला है, या 308 लिखो, 307 आपकी इच्छा। 50% से थोड़ा ऊपर है, अब कितना ऊपर है, कितना डिफरेंस है 307 और 26 के अंदर? कितने का डिफरेंस है? 19 का, राइट? Yes. तो 1% फाइंड करते हैं। व्हाट इज 1% ऑफ 615? 6.15. 6.15, राइट? सो हमको ऐसा क्या नंबर है जो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हम 19 के आसपास में 3, सो इनटू 3 करते हैं, सो 3% चेक करते हैं कितना आता है, और 615 हमको 19 के पास में जाना है, सो 1514 and this will be 18.45, exactly almost near 19. That means what will be our answer? Our answer will be 50. 53. आया दर्शन आपका ये आंसर? Yes. Great. Okay. Let's check one more question. Gaurav, you also try to solve it. The next number I'll give it to you people is 970 is what percent of 1225? Solve this question, everyone. I'm here only, I'm just muting so that आपको disturb ना हो. I'll give you 2 minutes to 3 minutes for this question. Solve it.
We know one's done. Done. Okay, let's check it. So base over here is 1225. So 10% of 1225 कितना आएगा? 122.5. Okay. Next. Now 112 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 97 के पास में पहुंचेंगे हम लोग? 7 सा 84 होता है, 8 सा 96 होता है. यहाँ पर 890 आता है, 980 आता है. सॉरी 980 आता है, तो क्रॉस कर लेंगे हम लोग. ओके फाइन. सो 7 के साथ ट्राई करते हैं. सो 35 3 17 1 15 1 857, right? Yes. Now that is nothing but 70% of a number. Okay. So 1% फाइंड करते हैं. 1% कितना आएगा? 12.25. कितना डिफरेंस आ रहा है 857 और 970 में? So 13. 113. Yes. Okay. So ऐसा 12 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 113 के आसपास में पहुंचेंगे 9? 9. Okay. So 9 से मल्टीप्लाई करते हैं. Let's see what do we get. So the number that we get over here is 220. 5s are 45, 4, 22, 2, 22, something like this. Yes. Almost near to this number. So हमारा final answer कितना आएगा? 70%. 79. समझ में आया दर्शन? Okay दर्शन. गौरव थोड़ा बहुत समझ में आया एटलीस्ट? नहीं मैम, कुछ समझ नहीं आया नहीं. अभी आप वो म्यूटेड का चक्कर हो गया. डू डेमो सेशन पूरा स्टार्ट टू बॉटम आप अटेंड करो तो एटलीस्ट समझ में आएगा. टुवर्ड्स द एंड आपका अनम्यूट हुआ है माइक, तो थोड़ा दिक्कत आएगा गौरव. ओके या ओके देन फाइन. So shall we conclude the session, Darshan? Because we have taken all the tricks. Please do practice on this. As this is a demo session, again I'll repeat. Time is 1.5 hour या हम लोग 1 hour 45 minutes ले रहे. Once your normal classes starts, it will be 2 hour session. Okay? Okay. Yes, sir. Okay, fine. Bye Gaurav. Bye Darshan. Darshan, Gaurav, any doubts? Gaurav को तो पूछ के फायदा नहीं because Gaurav was not there in the session. Darshan, you have any doubts? No. Okay, great then. Do practice, Darshan. See you in the next class. Gaurav, see you in the next class. Bye dear. Take care. Yeah ma'am, bye. Yeah.